پتن کے نواحی گاؤں کلیانہ میں درندگی کی انتہا، 7 سالہ بچہ بدفعلی کے بعد قتل، سفاک درندوں نے کمسن پھول کو قتل کر کے لاش نالے کے پائپ میں چھپا دی۔ اعظم 4 روز قبل لاپتہ ہوا تھا، تعفن پھیلنے پر لاش کا پتہ چلا۔ ہواؤں میں اڑنے کا شوق مہنگا پڑ گیا، پاک پتن میں دیسی ساختہ جہاز بنا کر اس کی کامیاب پرواز بھرنے والے کو پولیس نے دھر لیا۔ 3 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے رات بھر حوالات میں رکھا، صبح عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے 3000 روپے جرمانہ کرنے کے بعد رہائی کا حکم دے دیا۔ پھر پارکر میں غذائی قلت اور وبائی امراض، مزید 5 بچے دم توڑ گئے، رواں ماہ ہلاکتوں کی تعداد 69 اور رواں سال 201 ہو گئی۔ پشاور میں ڈینگی کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا، مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم شروع نہ ہو سکی۔ مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ دوسری جانب ڈینگی سے متعلق لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اور پشاور کے مضافات میں موسم بہار کے خوبصورت رنگ بکھر گئے، خوبانی کے باغات میں درختوں پر سفید پھول نکل آئے، باغوں کے رکھوالوں نے بھی درختوں کی حفاظت کے لیے کمر کس لی۔ السلام علیکم، شہر شہر گاؤں گاؤں کا احوالی میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چوہدری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر شامل کرتے آپ کو بتائیں، پاک پتن کے نواحی گاؤں کلیانہ میں درندگی کی انتہا کر دی گئی۔ 7 سالہ بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا، سفاک درندوں نے کمسن اعظم کو مبینہ بدفعلی کے بعد قتل کر کے لاش قریبی نالے کے پائپ میں چھپا دی۔ اعظم پہلی جماعت کا طالب علم تھا جو 4 روز سے لاپتہ تھا، اس کی لاش ملنے پر لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ پاک پتن کا یہ افسوسناک واقعہ جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک پتن کے نواحی گاؤں کلیانہ میں درندگی کی انتہا کر دی گئی۔ مزید تفصیلات کے اس حوالے سے بتائیں گے نمائندہ نیو رانا جواد مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، آگاہ کیجیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا کارروائی عمل میں لائی گئی؟ جی، یہ واقعہ پاک پتن کے نواحی علاقے کلیانے کا ہے۔ یہاں پہ 6 سالہ بچہ تھا جس کو 4 روز پہلے یہ لاپتہ ہوا تھا، اور جب تعفن پھیلا لاش کا تو تب وہاں پہ نزدیک گزرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ کھالے کے اندر پائپ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کی لاش باڈی پڑی ہوئی۔ وہاں سے ٹریس کر کے 1112 نے DH کے پاک پتن بھیجا اور پھر اس کے پر FIR درج کی اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا جواد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے لودھرا میں معمولی لڑائی جھگڑے پر، شوہر نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر ڈالا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودھرا سے، جہاں پر معمولی لڑائی جھگڑے پر شوہر نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک اور گھریلو نچاکی ایک اور زندگی لے گئی، لودھرا میں معمولی لڑائی جھگڑے پر شوہر نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر ڈالا اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تیز دھار آلے سے شوہر نے بیوی کو قتل کر ڈالا، لودھرا کا یہ واقعہ ہے جہاں پر معمولی لڑائی جھگڑے کے باعث شوہر نے بیوی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے نمائندہ نیو سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ دنیا پور تحصیل کے نواحی علاقے 370 WB کا واقعہ ہے کہ جو شوہر نے جو ہے وہ بیوی سے پانی مانگا، اس سے انکار کرنے پہ جو ہے وہ شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور بیوی کو جو ہے وہ کلہاڑیوں کے وار کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ملزم کے جو ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ تھانہ جلا رائی نے جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ خاتون کا جو ہے وہ دنیا پور DH کے دنیا پور میں جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان چوہدری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر ناروال محلہ عباس نگر میں جنرل اسٹور کے ہول سیل ڈیلر کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو فائر بریگیڈ کا عملہ صرف چند فرلانگ پر آدھے گھنٹے کی دیر سے پہنچا، آگ پر تاحال مکمل قابو نہیں پایا جا سکا۔ آپ کو آگاہ کریں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے، ناروال محلہ عباس نگر میں جنرل اسٹور کے
होल सेल डीलर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड का अमला सिर्फ चंद फरलांग पर ही मौजूद है, लेकिन आधे घंटे की ताकीद से पहुंचा। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। नारोवाल से आपको अपडेट करें, जहां पर जनरल स्टोर के गोदाम में आग भड़क उठी। अचानक इस आग भड़कने से जलकर सामान खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड का अमला पास ही मौजूद था, लेकिन आधे घंटे की ताखीर से पहुंचा। और अब बात करेंगे थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज। मज़ीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह हलाकतों की तादाद 69 और रवा साल 201 हो गई। मिठे सिविल अस्पताल में जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 माह का जफरुल्ला, 2 माह की शांति प्रताप के 2 नामौलूद बच्चे और तहसील नंगर पारकर के अस्पताल में 1 साल की फरीदा शामिल हैं। 52 बच्चे सिविल अस्पताल मिट्टी में ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ इजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़ आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, सिविल अस्पताल मिट्टी में जो ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकतों का सिलसिला जारी है और आज भी सिविल अस्पताल मिट्टी में 5 बच्चे हलाक हो चुके हैं। हलाक होने बच्चों में 16 माह का जो बच्चा है वो शामिल है और 2 नौ मौलूद बच्चे शामिल हैं। इस तरह जो सिविल अस्पताल मिट्टी है उसमें अद्वैत का जो कमी है वो भी बरकरार है। जी बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पाकपतन में नौजवान को हवाओं में उड़ने का शौक महंगा पड़ गया। देसी साख्ता जहाज बनाकर इसकी कामयाब परवाज भरने वाले को पुलिस ने धर लिया। 3 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके रात भर हवालात में रखा। सुबह अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने 3000 रुपए जुर्माना करने के बाद रिहाई का हुक्म दे दिया। देसी पायलट की पकड़ाई, अपनी ही तख्लीक गले पड़ गई। हवाबाजी जुर्म बन गई। हवाओं का मुसाफिर सलाखों के पीछे। पाकपतन के नौजवान ने जहाज बनाया फिर उड़ाया। फयाज को कारीगरी और बाजीगरी महंगी पड़ी। कानून तोड़ने पर पुलिस के शिकंजे में आ गया। दफा 285, 286, 287 के तहत मुकदमा। पुलिस के मुताबिक फयाज ने पूछे बिना जहाज बनाया, बगैर इजाजत उड़ाया, खतरनाक करतब दिखाए। फयाज को शौक में भारी कीमत चुकाना पड़ी। हवाओं में उड़ने की शौकीन रियाज की वालदा का कहना है कि उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता है, इसने अपने शौक के लिए जहाज बनाया। इसका मकसद कोई कानून तोड़ना नहीं था, जबकि अहले इलाका ने भी फयाज को एक मेहनती नौजवान करार दिया है। मैं ये कह रही हूँ हुकूमत नूं मेरे बेटे नूं रिहाई दी जाए, उन्होंने छड़ दवो, उन्होंने बेटे मेरे नूं रिहाई दी जाए। मेरे बच्चे शौक से मुहब्बत नाल उन्हें बनाया सी, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई गल नहीं कि मेहरबानी करो मेरे बच्चे नूं हुकूमत नूं मैं कह रही हूँ छड़ दो। मेहनत मजदूरी वो करके बनाउंदा, जमीन अपनी उन्हें बेची आ, उन्हें टावरां ते काम कीते, गार्डां दे कीते, भाई को पैसे लैंदा रहा। लेकिन मेहरबानी करो हुकूमत साहब, तुसीं इहनूं छड़ दो, मेरे बच्चे नूं कोई इहदे विच नुक्स नहीं हैगा। और अब शहर गांव के अहम मसाइल के हवाले से आपको आगाह करें। कोई कस्बा हो या शहरी इलाका, पटवारियों की लूट मार का बाजार गर्म है। ज्यादा आमदन वाले पटवार खानों में तैनाती के लिए सिफारिश और बोलियां लगाई जाती हैं। जो पटवारी साहिबान सियासी असर रसूख के अलावा अफसरान की गैर ज़रूरी मुतालबात तस्लीम करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें उन हलकों में तैनात किया जाता है जिस पर ज़मीन के खरीदो फरोख्त का काम सबसे ज़्यादा होता है। पटवार खाने से ज़मीन की निशानदही कराने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस से ज़मीन की नकल हासिल करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। पटवार खानों में होने वाली करप्शन के बायस लाखों मुकदमात अदालतों में ज़ेरे समात है। कंप्यूटराइजेशन का मंसूबा भी पटवार खानों की करप्शन खत्म नहीं कर सका। करप्ट पटवारियों के बायस कई खानदान अपनी जायदादों से महरूम हो चुके। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान गुजरावाला से हमारे साथ होंगे इफ्तिखार अली, सराय आलमगीर से हमें बताएंगे अमजद शाह, जबकि एबटाबाद से हारून अहमद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार अली। उनसे जानेंगे कि गुजरावाला में पटवार का सिस्टम कैसा है। इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पटवार खानों में होने वाली करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़्यादा आमदन वाले पटवार खानों में सिफारिश और रिश्वत का जो है बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और मनपसंद जगह पर जो है वो पटवारियों को तैनात करने के लिए सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल भी यहाँ पर जो है वो होता नज़र आता है। इसके अलावा आपको यह भी बताता चलूँ कि जो है वो दूर दराज से आने वाले साइलिन लाखों रुपया रिश्वत देकर जो है वो अपने जो है वो फ़र्द मलकियत और दीगर जो उनके कागजात हैं वो हासिल करते हैं। हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तमाम कंप्यूटर्स वाले हैं ना, वो यही कहते हैं कि पैसे दो तो काम कराओ,
ये जो ढके छुपे नहीं है, 6-6 महीने हो गए काम कराने के लिए आते हैं, कोई काम ही नहीं करता। कहते हैं कल आना, 6 महीने हो गए काम करने, काम हुआ ही नहीं है। कहते हैं पटवार खाना जाओ, पटवारियों का तो सिलसिला नहीं, ये तो कंप्यूटराइज हो गया, पटवारियों के पास जाना ही नहीं। उनका मजीद कहना था कि जो है वो लाखों की तादाद में मुकदमात जो है वो अदालतों में ज़ेरे गौर हैं, इसके बावजूद भी पटवार खाने जो हैं वो काम नहीं कर रहे। अगर जो कंप्यूटराइज हैं वो भी जो है वो रिश्वत लिए बगैर जो है वो काम नहीं करते। जी, गुजरांवाला के पटवार खानों में तो करप्शन अरूज पर है। अब रुख करते हैं सराय आलमगीर का, जहां पर अमजद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। अमजद, बताएगा। जी बिल्कुल, तहसील सराय आलमगीर तकरीबन 97,000 एकड़ रकबा पर आबाद है। इसके 111 देहात हैं और 111 देहात के लिए 23 पटवार खाने बनाए गए हैं। और सर्कल के पटवार खाने हैं वो सर्कल में होने के बजाय शहर सराय आलमगीर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। और जो लोग हैं वो जो हैं वो कई किलोमीटर का सफ़र तय करके पटवार खानों में आकर यहाँ पर एक फ़र्द हासिल करने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। ज़मीन 2 नंबर पटवारी ने कंप्यूटर तान के इंतकाल किया और इंतकाल कंप्यूटर वाले ने चाड़िया और अंदराज किया ने मजदूर बंदा उस को जीवी खोने। मैं उन्हें साथ दे रहा हूँ, इस ज़मीन इसकी है। पटवार खाने हैं वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमारी ज़मीन का जैली इंतकाल करके किसी और के नाम कर दी गई है, जबकि ये ज़मीन एक माजूर शख्स की थी और वो माजूर शख्स अब अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम पटवार खानों में जो पटवारी हैं उन्हें तैनात किया जाए और उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि तमाम पटवारी अपनी हदूद में रहकर काम। सराय आलमगीर में तो आवाम इस पटवार सिस्टम से परेशान नजर आते हैं। अब एबटाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद हारून अहमद से जानते हैं कि वहाँ की आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जी हारून। कि करप्शन की अगर बात की जाए तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। महकमा माल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने पिछले 5 साल अपने वक्त मुकम्मल किया। उसमें इन्होंने एक दावा किया था कि हम महकमा माल को कंप्यूटराइज करेंगे, जो कि आज तक कंप्यूटराइज नहीं हो सका है। उसमें ये पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत इसमें मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। इसी हवाले से हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो महकमा माल के इस हवाले से क्या कहते हैं। महकमा माल में जो लोग भर्ती किए गए हैं, एक तो उनकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, 2 वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लोगों के नाम तक एंट्री गलत करते हैं और फिर दुरुस्तगी सेहत नाम के ज़रिए हो सकती है लेकिन नहीं करते, कोर्ट जाने की हिदायत करते, इसलिए लिटिगेशन ज़्यादा हो गई है। 2 उन्हें हिस्सा निकालने या मुतलका रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी पता नहीं। तो तहसीलदार होता है, तहसीलदार के लिए भी एक ह्यूज रकम जो है वो दी जाती है, जबकि सब कुछ ये तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के सामने हो रहा है। अभी तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सका। जी, बाकी शहरों की तरह एबटाबाद के अवाम भी परेशान नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया हारून आपका। इफ्तिखार अली, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां शहरी मुश्किलात का शिकार हुए हैं, तो वहीं स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर हुकूमत ने उनकी जेब खर्च पर डाका डाला है। अब्दुल हई की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी शदीद परेशान। कहते हैं महीने में पेट्रोल के पैसों से जेब खर्च भी बचा लेते थे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिले हैं। हमारे पास अपना जेब खर्च बिल्कुल महदूद हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा ना करें, हम स्टूडेंट हैं, हमने भी पढ़ना है और साथ अपने खर्च को भी देखना। पेट्रोल डलवा के खाली सफ़र नहीं करना। तलबा का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा होगा, जिससे इनके तालीमी अखराजात बढ़ जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, हमारे आने जाने का खर्चा रक्शे वालों ने ज़्यादा कर दिया। इस वजह से हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल का खर्चा थोड़ा कम करें, पेट्रोल सस्ता करें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। डबल हो गया काम, अब हमारी बचत के लिए कोई पैसा भी नहीं बच रहा। तलबा का कहना है महंगाई खत्म करने के दावेदार हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर यूटर्न लिया। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अब्दुल हई, डियो न्यूज़ लाहौर। तेल बम गिरने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से शेख और अनुश की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन पर फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वो तो इस गवर्नमेंट ने आसमानों तक पहुंचा दिया। जो दालें जो पहले मिल रही थी, अब 10-10 रुपये फी दाल केजी पर इस पर इजाफा कर दिया गया है, जो कि एक गरीब आदमी की पहुंच से भी बाला तर है। तो गरीब है वहाँ में
उनके लिए आसानियाँ करें, ना ये कि इस तरह मुश्किल, लेकिन हो सकता है उनके भी कोई अपनी मजबूरियाँ हों। माश की दाल है, मसूर की है, चना है, चावल है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी जो है ना गरीब आवाम, इनकी ज़रूरियात है रोज़ाना की, इन्होंने ना इसी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना गरीब आवाम है और से ज़्यादा गरीब हो रही है, खाने से जो है ना भूखी मार रही है। रहमिया खान की तहसील लियाकतपुर के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदनियों मारूफ अनवर से। हाँ जी, बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, रात गए जो हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है, उस हवाले से अवाम बहुत परेशान है और गम गुस्सा पाया जाता है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है हुकूमत ने, जो इतना पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया है और दिन ब दिन हर महीने ये बढ़ा देते हैं। तो ये पहली हुकूमतों वाले ये पेट्रोल 2-4 रुपये बढ़ाते थे तो ये इमरान खान खुद धरने देते थे, ये जुलूस निकालते थे कि इन्होंने जुल्म किया है, इस हुकूमत ने जुल्म किया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। लेकिन इस हुकूमत ने तो उनको पीछे छोड़ दिया है, इतनी महंगाई कर दी, और जब ये पेट्रोल डीजल महंगा हो तो जाहिर है दूसरी अशिया भी महंगी होंगी। जैसा कि इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये प्राइस जो हैं, जो कीमतें बढ़ाई हैं, ये फिलफौर वापस लिया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले। जी। उधर गुजरात में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर गुजरात के अवाम भी सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोल पंप्स की फरोख्त पर भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदनियों सईद अहमद से। जी बिल्कुल, जो है वो गुजरात में भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बायस अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। आज हमने देखा है कि बाकी पेट्रोल पंप्स पर जब हम लोग गए हैं तो कुछ लोगों से हमने पूछा तो उनका कहना यह था कि आज पेट्रोल पंप पर जो रश है वो पहले की निस्बत काफ़ी कम है। उसकी एक वजह तो यह है कि लोगों ने कल ही जब उनको पता था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है तो लोगों ने अपनी टैंकियां फुल करवा ली हैं। इसके अलावा भी जो है वो पेट्रोल पंप पर जो लोग खड़े हैं हम उनसे बात करते हैं। पेट्रोल जो जहाँ पे पहले 200 का डलवाते थे अब 100 रुपये का डलवा रहे हैं। जो महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से ना काफ़ी दुश्वारियाँ महसूस हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा सोचे। और साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा, पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी है इन पे क्या कहना है? देखें जी, पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे ने जब इलेक्शन से पहले उन्हें कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा जी पेट्रोल 45 रुपये बिकना चाहिए, अवाम पे लोड डाला जा रहा है। पिछली हुकूमत ने अवाम पे लोड डाल दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये दिन ब दिन ये खुद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि पेट्रोल की प्राइसें जो हैं वो अवाम की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा उन्होंने तब्दीली वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया। नकल माफिया तालीम से खिलवाड़ के लिए सरगर्म हो गई। घोटकी में वक्त से पहले ही पर्चा आउट हो गया। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, घोटकी, मीरपुर खास और धर्म में 9वीं 10वीं इम्तिहानात में प्री, माइक्रो और मोबाइल फोन्स कमरे इम्तिहान में गर्दिश करने लगे। चंद 100 या 1000 के बस पर्चे भी हल करके दिए जाने लगे। सूबाई महकमा तालीम नकल माफिया के खिलाफ बेबस नजर आ रही है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात तालीम से हुआ खेलवाड़। कराची के इलाके कोरंगी में पेपर शुरू होने के 1.5 घंटे बाद भी तलबा इम्तिहानी सेंटर ढूंढते रहे तो कोई एडमिट कार्ड न मिलने का शिकवा करता रहा। सिंध नकल माफिया बाहर निकल आई। पहले ही पर्चे में इम्तिहानी जवाबित की धज्जियां उड़ा दी। सखर के इम्तिहानी मराकज में माइक्रो, फर्रे, मोबाइल फोन इम्तिहानी मराकज में गर्दिश करते रहे। कोटकी में 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। फोटोकॉपी की दुकानों पर पर्चा 100 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाड़काना कश्मोर थर पार्कर में तालिब इल्म किताबें खोलकर पर्चा हल करते रहे। खानपुर महर के इम्तिहानी मराकज पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार भी नकल करवाने के लिए सरगर्म रहे। नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी सहूलतकार बन गई। पन्नू आकिल में पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आउट हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पर्चे आउट होने का नोटिस दे लिया। मुतालिका चेयरमैन बोर्ड और कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के मुलाजमीन को हिदायत की है कि वो व्हाट्सएप और समाजी राब्तों की दीगर वेबसाइट से अलहदगी इख्तियार करें। हुकूमत ने यह हिदायत क्यों जारी की है, तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में देखिए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सरकारी अफसरों और मुलाजमीन के लिए नया फरमान जारी। ये फरमान व्हाट्सएप ग्रुपों और समाजी राब्तों के पेजेस के हवाले से है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तहरीर की जाने वाली एक चिट्ठी में कहा गया है कि बाज अनासिर वेबसाइट, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस के जरिए बेबुनियाद और गलत इत्तलात फराम करके नफरत और बेचैनी पैदा करते हैं। हुकूमत की जानिब से इस अमल की मजम्मत की गई है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को कहा गया है कि वो तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को अवामी मुफाद में व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पेजेस से इनखिला की हिदायत करे। आज़म उल्फत, नियो, क्वेटा। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि भारत के साथ हालिया कशीदगी और F-16 तैयारों को निशाना बनाने का मामला। ISPR का कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर से JF-17 थंडर तैयारों से की गई। बाद में चंद दो भारतीय जहाज़ों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की तो उन्हें पाक फजाइया ने निशाना बनाया। पाक फजाइया ने दोनों भारतीय जहाज़ों को अपने दिफा में मार गिराया। इन दो भारतीय जहाज़ों को F-16 ने निशाना बनाया, जो कि F-17 ने। ये सवाल बेमायनी है, अगर F-16 इस्तेमाल हुआ तो तब भी दो इंडियन जहाज़ ही निशाना बने। जब भारतीय जहाज़ आए तो फजाइया के तमाम जहाज़ बशमूल F-16 फिजा में मौजूद थे। 27 फरवरी का वाक़या तारीख का हिस्सा बन चुका है। आपको अपडेट करें कि भारत के साथ हालिया कशीदगी और F-16 तैयारे को निशाना बनाने का यह मामला है। ISPR का कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर दो भारतीय जहाज़ों ने LOC की खिलाफ वर्जी की तो उसे निशाना बनाया गया। भारत के साथ हालिया कशीदगी और F-16 तैयारे को निशाना बनाने का यह मामला। ISPR का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर से JF-17 थंडर तैयारों से की गई। बाद में जब दो भारतीय जहाज़ों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें पाक फजाइया ने निशाना बनाया। पाक फजाइया ने दोनों भारतीय जहाज़ों को अपने दिफा में मार गिराया। इन दो भारतीय जहाज़ों को F-16 ने निशाना बनाया या JF-17 ने, ये सवाल बेमायनी है। अगर F-16 इस्तेमाल हुआ तब भी दो इंडियन जहाज़ ही निशाना बने। जब भारतीय जहाज़ आए तो फजाइया के तमाम जहाज़ बशमूल F-16 फिजा में थे। 27 फरवरी का वाक़या तारीख का हिस्सा बन चुका है। और अब बात करेंगे लाहौर में मेला चरागां के आखिरी रोज़ भी अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों को जोशो खरोश भी दीदनी है। आज का दिन ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया। ज़ैफ़ुल उम्र ख़वातीन ने मेला चरागां की पुरानी यादों को खूब ताज़ा किया। अदनान अजीज़ की रिपोर्ट देखते हैं। मेला चरागां के आखिरी रोज अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मलंगों ने ढोल की थाप पर खूब धमाल डाली। अकीदतमंदों का माधो लाल हुसैन के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत का इजहार। कहते हैं यहाँ आकर दिली सुकून मिलता है। उस पर आज भी वही जोशो खरोश है जो माजी में हुआ करता था। मैं तो ये चाहना हाँ कि सारी आवाम ही चाहती है कि जिस दिन माधो लाल हुसैन के चिराग होन तमाम रस्ता खत्म किया जाए, दुकाना लगाई जान, आने वाले लोग पैदल आउन, उस तरह मेला फिर भखे। पाकिस्तान की हुकूमत ने मेला खत्म कर दिया। खवातीन का कहना था माधो लाल हुसैन से अकीदत के इजहार के लिए बचपन से यहाँ आ रही हैं। मेला माधो लाल हुसैन के उस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कैमरामैन हारिस के साथ अदनान अजीज, न्यू न्यूज़, लाहौर। जलालपुर पीरवाह में पाक व हिंद के मारूफ आलिम दीन और रूहानी बुजुर्ग पीर सुल्तान अहमद बुखारी के सालाना 398 में 7 रोज़ा उर्स के मौके पर मेले का अहतमाम किया गया, जिसकी तफसील बताएंगे मदनी खान अपनी इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में इलाकाई तहजीब और सकाफती सरगर्मियों पर मुश्तमिल इस मेले का इनकाद हर साल किया जाता है। मेले में सर्कस, मौत के कुएं, चिड़ियाघर, थिएटर, झूले, खिलौना बाजार समेत दीगर तफरीही सरगर्मियां शामिल होती हैं। इस मौके पर लोग मेले की मिठाइयाँ तोहफे में भी भेजते हैं, जिसके बहस रंग बिरंगे मिठाइयों के स्टॉल खास तवज्जो का मरकज़ होते हैं। जलालपुर में जारी और सहरी रहने वाले इस मेले में हम बहुत खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर थिएटर, लकी रानी सर्कस, झोले और मौत का कुआं भी मौजूद है और बाहर सड़कों के ऊपर खिलौने की दुकानें और मिठाई के स्टॉल लगे हुए हैं। पीर कताल के नाम से लगने वाले इस मेले को खास अहमियत हासिल है। इस मेले में इर्द गिर्द कई शहरों से शायकीन बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन बड़े शौक से मेले की चहल पहल इंजॉय करते हैं। इस मौके पर दुकानदारों की बड़ी चांदी होती है। बिलाशुबा ये मेला जलालपुर की आवाम का एक बड़ा तफरीही जरिया है। इस मेले में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं
تاکہ اس میلے میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ آزادی سے اس میلے کو لطف اندوز کر سکیں۔ کیمرہ مین لطیف عباس کے ساتھ محمد مدنی خان، نیو نیوز، جلال پور پیر والا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم ہے، خبر شامل کریں گے فیصلہ آباد سے، جہاں پر زرعی حکام کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث غیر قانونی ادویات کے فروغ سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی۔ شوکت وٹو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حکام کی ملی بھگت سے شہر بھر میں غیر قانونی جی ٹی ایل جیل سمیت مختلف ادویات کی فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت افسران کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے اور اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ اگر ڈیورنگ وزٹ اگر کوئی ایسی زیادہ میعاد دوائی ملتی ہے تو وہ ساری کی ساری وہاں پہ سیز کر لی جاتی ہے، اور ڈرگ انسپیکٹر اس کا سیمپل لے گا، اس کی اپنی کسٹڈی میں لے گا، اس کو باقاعدہ اس کی سیل لگائے گا، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے اس کا چالان فارم 5 ہوتا ہے اس کے اوپر بھرے گا۔ غیر معیاری ادویات کی فروخت کو روکنے کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے ناکافی اقدامات حکومتی ناقص کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے سرکاری تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے ذریعے آئش نشاب فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر طلباء اور ان کے والدین تشویش میں مبتلا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص شراز۔ فروشوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ آئس نشہ کے کاروبار کا دھندا یونیورسٹیوں میں عروج پر پہنچ گیا۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں لڑکیوں کے علاوہ مین ڈرگ ڈیلر کا نام بھی سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق روبینہ نامی خاتون اقرا اور سائمہ نامی لڑکیوں کے ساتھ مل کر جی سی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی اور این ایف سی یونیورسٹی میں آئس فروخت کرتی ہیں۔ منشیات فروشوں کا سرگنا اور مین ڈیلر وقاص جٹ نامی شخص ہے، جبکہ تھانہ منصور آباد پولیس منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بہت خطرناک نشہ ہے، یہ جاننے کے باوجود ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ بہت سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اسپیشل برانچ رپورٹ کے مطابق پولیس کی بجائے اینٹی نارکو ٹیکس فورس سے کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ طلباء اور طالبات اس جرم سے بچ سکے۔ کیمرہ مین ابرار احمد کے ساتھ وقاص شراز، نیو، فیصل آباد۔ ادھر بلوچستان کے ضلع دوکی میں پوست کی فصل کی غیر قانونی کاشت کا انکشاف ہوا۔ ضلع میں لیویس فورس اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے 10 ایکڑ پر مشتمل پوست کی فصل کو تلف کیا ہے۔ تفصیلات اعظم الفت کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دکی میں پوست کی بڑے پیمانے پر غیر قانونی کاشت کا انکشاف۔ لیویز فورس اور اینٹی نارکوٹکس فورس پوست کی فصل کے خلاف ان ایکشن۔ سرکاری حکام کے مطابق پوست کی فصل کے خلاف دکی کے 2 علاقوں کلی تالاب اور کلی بختیار خان میں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 10 ایکڑ پر پوست کی کاشت کی گئی تھی، جسے تلف کیا گیا۔ واضح رہے کہ پوست سے ہیروئن جیسا خطرناک نشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اعظم الفت، نیو، کوئٹہ۔ اور اب بات کریں گے پشاور کے مضافات میں موسم بہار کے خوبصورت رنگ۔ خوبانی کے باغات میں درختوں پر سفید پھول نکل آئے، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خوبانی کے باغوں کے خوبصورت مناظر دکھا رہی ہیں پشاور سے نایاب رضوان۔ پھولوں کے شہر پشاور کے مضافات میں موسم بہار کے خوبصورت رنگ۔ موسم کے انگڑائی لیتی ہی خوبانی کے باغات سفید پھول اور پھلوں سے بھر گئے۔ پتجھڑ کے مارے درخت کھل اٹھے، کھیت کھلیان میں سبزے کی چادر بچھ گئی۔ باغ کے رکھوالوں نے بھی درختوں کی حفاظت کے لیے کمر کس لی۔ تبدیلی آتی ہے تو ملک کو سرسبز کرنے کی، جس طرح یہ گندم کا فصل ہے یا باغات ہے، یہ تو قیمتی ہے، یہ ملک کا سرمایہ ہے۔ جس ملک میں زراعت زیادہ ہو وہ ملک زیادہ ترقی کرتا ہے۔ خوبانی کے ہرے بھرے باغات سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ نیاب رضوان، نیو نیوز پشاور۔ سوات کے پہاڑوں کے دامن میں معلم جبہ 3 روزہ سنو اسکی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کھلاڑیوں نے برف پوش اسکی ریزورٹ پر بہترین کارکردگی دکھائی۔ فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ تاجدار عالم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
जन्नत नज़ीर वादी स्वात में 3 रोज़ा स्नोस की गाला, मकामी खिलाड़ियों की बर्फोश स्की रिजॉर्ट पर बेहतरीन कारकर्दगी। फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद पहुंच गए। बर्फानी खेल में कोई भी किसी से कम नहीं था। स्की फेस्टिवल में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा। हम कल आए हैं, मिंगोरा में हमने स्टे किया है, आज हम ऊपर मालम जब आए हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं। स्की मुकाबलों में बच्चों समेत मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अपने फन के खूब जौहर दिखाए। सफेद चादर में लिपटी हुई खूबसूरत पहाड़ों ने सयाहों को अपने तरफ खींच लिया। माशाल्लाह हम बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें एक पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। इसकी मुकाबलों में जहां खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, वहीं आने वाले सयाहों ने खूब मजे लिए और तस्वीर बनाते रहे। मालम जब्बा स्की फेस्टिवल से एक तरफ सयाह महसूस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सयाहत को भी फरोग मिल रहा है। ताजर आलम, नियो, सवात। उधर विहाड़ी में मिसाल फ्लावर शो का इनेकाद तो ना हो सका, लेकिन फूलों से मोहब्बत करने वाले विहाड़ी के जिंदा दिल शहरी इबाद हुसैन ने अपने घर को फ्लावर हाउस में तब्दील करके शहरियों के लिए तफरी का सामान मुहैया कर दिया। मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। हो सका तो क्या हुआ। विहाड़ी में हर साल होने वाली नुमाइश के मुलतवी होने पर इबाद हुसैन ने अपने घर में फूलों को सजा लिया। रंगारंग धनक बिखेरते गुलों की खूबसूरती से महजूज होने के लिए शहरियों ने एग्जीबिशन का रुख कर लिया। इंडियन कॉर्नेशन, क्लाइएंथिस, पिटोनिया, जेरेनियम, ब्लैक गुलाब और दीगर नायाब अक़साम की दिलकश सजावट, माहौल हसीन हो गया। लोगों ने इबाद हुसैन की फूलों से मोहब्बत और शहरियों के लिए बेहतरीन काविश को सराहा और इंतजामिया से सालाना फ्लावर शो के इनेकाद को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुनव्वर हुसैन, न्यू न्यूज़, विहाड़ी। उधर टोबा टेक सिंह ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस में मौसम बहार की आमद पर फ्लावर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से अधिक इक़साम के फूलों को खूबसूरती से सजाया गया। ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट देखते हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टेक सिंह में फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल और चेयरमैन ज़राअत कमेटी मियां इम्तियाज अहमद ने किया। कि पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज से इन्होंने लॉन्स को डेकोरेट किया है। मैं इन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वही लॉन हम विजिट करने जा रहे हैं जो 2018 से पहले एक बंजर थी, चोलिस्तान था। आज इनको हमने आई कैचिंग बनाया है। फ्लावर शो में 100 से ज्यादा इक़साम के फूल रखे गए। तलबा और तलबात का कहना था कि फूलों की नुमाइश से इन्हें अपनी सलाहियतें उभारने का मौका मिला है। स्टूडेंट्स में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, उनका विजन इम्प्रूव हो रहा है और कैंपस की आउटलुक भी इम्प्रूव हो रही है। फ्लावर शो देखने के लिए सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत तलबा और तलबात और वालिदैन की बड़ी तादाद पहुंची।